بلوچستان کے مزدوروں کے بچوں کو امریکن بورڈنگ سکول میں بھیجا ہے. مزدور کا بچہ اب مزدور نہیں بنے گا. مزدور کا بچہ اب مزدور نہیں رہے گا بلکہ ڈاکٹر، انجینئر اور مستقبل کا سیکرٹری بنے گا. بچوں کو یہ کام رہائشی مکان میں رکھا گیا ہے جہاں نہ مناسب تعلیمی موجود ہے، نہ پہلی گراؤنڈ، نہ کھیلنے کا گراؤنڈ چاردیواری اور نہ ہی بنیادی سہولیات. تعلیم کا معیار انتہائی کمزور ہے جن کی وجہ سے بچے تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ مزدور نوکر ہے، کوئی مزدور کسی صاحب کو بول سکتے ہیں؟ وزیر صاحب کوئی سیکرٹری بول سکتے بھائی یہ کام کرو، بھائی آپ حکمرانی نہ کریں، مجھے یہ نہ بتائے کہ تک جمع کرے، آپ اپنا مزدوری سے کام کریں. ایک اسکول جو ہے ہمارے ساتھ پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابھی ہم ہنگامی بنیاد پر ایک پلازا ہے شیخ پورہ میں کوٹ عبدالمالک میں کہ آپ یہاں پہ پڑھا لیں گے، پھر ایک مہینے کے بعد یا 2-3 مہینے جب سردی شیٹ ختم ہو جائے گا ہم آپ کے لیے گراؤنڈ، اس میں پلے گراؤنڈ بھی ہوگا، فٹ بال کا، کرکٹ کا گراؤنڈ بھی ہوگا، وہاں میں اسٹل بھی ہوگا. لیکن یہ والدین وہاں پہ گئے، وہ ایک پلازا بڑا پلازا ہے جیسے ہمارا ریگل پلازا ہے یا دوسرے پلازے سلی کمپلیکس والی، اس طرح پلازے میں اسکول پڑھا رہے ہیں. تو بچے وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کمرے میں اس میں رہائش بھی اختیار کر جیسے جیل جیسا ماحول ہے. جس ادارے کی اچھی معیاری ایجوکیشن ہوگی ہم اس کو ٹھیکہ دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں. ایک بندہ ہے ڈاکٹر ندیم کیانی، وہ پتہ نہیں کس کا چہیتا ہے، اس پر حکومت کیوں مہربان ہے، اس پر یہاں بھی مہربانیاں ہوئی بغیر ٹینڈر کے تمام بچے اس کو بھیج دیے گئے. اس نے کیا کیا، آدھے بچے اس نے شیخ پورہ کی حدود کوٹ عبدالمالک میں ایک پلازا لیا ہوا ہے، بند پلازا، اس میں رکھے اور آدھے اسلام آباد کے دور دراز ایریاز میں رکھے. اور ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا، ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں بیوٹیپٹا میں ناکام ہوا، وزیر اعلیٰ نے ساری ذمہ داری ڈال دی ایم ڈی طارق جاوید پہ، جس کا کوئی فوکس نہیں تھا، بس آئے یہاں پہ ہاتھ صاف کرنے پر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کمپنیاں تھیں وہ ساری اپنے مفادوں میں لگی ہوئی ہیں. تو وہ کیا ہوا، وہ ناکام ہو گیا پروجیکٹ، طارق جاوید کو ہٹا دیا گیا، بس چل رہی ہے انویسٹیگیشن. یہاں پہ ہے عبدالستار بگٹی، اب اس کا جرم بھی اربوں میں ہے لیکن اس کو نہیں ہٹا رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا اپنا ہے شاید، اور کہا کہ وہ تعلیمی ادارہ تو نہیں ہے، وہ تو جیل والا ماحول ہے، اسی میں وہ پڑھتے ہیں. پلازا ہے جس طرح ریگل پلازا ہے یا کوئی بھی پلازا ہوتا ہے، بند ہے، نہ کھیل کے میدان ہے، نہ تعلیم کا معیار ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، مار کٹائی زیادہ ہے. تو یہ تعلیمی ادارہ ہے؟ یہ ہے مزدور کے بچے کا مستقبل. مزدور بیچارے کا کوئی نہیں ہے. یہ ادارہ جو یہاں پہ ورکر ویلفیئر بورڈ بنا ہوا ہے، کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے. ایک بندے کا بالکل لو سٹینڈرڈ پر بچہ جو فیس لی جا رہی ہے 72,000 یعنی 72,000 روپے لی جا رہی ہے، اور اس کا سٹینڈرڈ 22,000 کا بھی نہیں ہے. اب اگر میں بتاؤں جو ان کو جا رہا ہے پر منتھ پیسہ ان کو جا رہا ہے 8,51,76,000 روپے پر منتھ جا رہا ہے. 8,51,76,000 روپے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو گئے ہوئے ہیں چیکوں کی تصویر ہے اس پر. سالانہ اگر ہم اس کی بات کریں تو سالانہ ان کو جا رہا ہے 1,02,21,12,000 روپے. مطلب ہر سال ان کو کم سے کم جو جائے گا 1,02,21,12,000 روپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. عالمی یوم مزدور یعنی ورلڈ لیبر ڈے کے موقع پر آج ہم تھوڑا اسٹوڈیو سے باہر نکلے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لیبر کسی بھی سوسائٹی میں کیا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک باغ ہے. یہ کنہوں نے آباد کیا ہے؟ اسی لیبر نے آباد کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے سوسائٹی بھی میں یہ باغ پھل فروٹ تو وہ کر ہی رہا ہے، ساتھ میں آکسیجن سمیت مختلف فوائد، پھر موسمیاتی تبدیلیاں، ان تمام میں ان کا کردار مطلب پازیٹیو ہی رہا ہے سوسائٹی کی بڑھوتری میں، سوسائٹی کی بہتری میں. اب ہم آتے ہیں مدعے کی جانب. ویسے تو اوورآل پاکستان پھر خصوصاً بلوچستان، آج وزیر اعلیٰ موصوف کا بیان آیا ہوا تھا کہ اپریشیٹ تو کیا ہوا تھا لیبر کو، لیکن ساتھ میں کہا ہوا تھا کہ پہلی مرتبہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے، ملک کے اعلیٰ معیاری اداروں میں ان کے بچے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. پھر یہاں ہمارا ان سے اختلاف رہا. ہم نے پہلے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی شاید نیت ایسی نہ ہوئی ہو، جس طرح بیوٹیپٹا کا ان کا جو پروجیکٹ تھا برے طریقے سے ناکام ہوا. ان کی تیاری بالکل نہیں تھی. انہوں نے یہ خواب باتیں ان کو پتہ نہیں ٹیم ایسے وہ کرتی ہے یا یہ خود
समझते हैं कि सिर्फ बड़ी बातें करने से ही तब्दीली आ सकती है, तो मेरे ख्याल में जब तक हुकूमत में नहीं आए थे तब तक चल सकता था, अभी नहीं चल सकता, अभी आपने प्रूव करना है। यू आर द चीफ मिनिस्टर। BTEFTA वाला आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि हमें भेजा नहीं गया, हमें बेचा गया। हम बाहर के ममालिक में, यूरोप में तो कोई एक भी नहीं गया, हमें जो गल्फ में भेजा भी गया, सऊदी वगैरह, या इधर हम गए भी तो हम इतना मजबूर हुए कि अपने घर वालों से पैसे मंगवाते थे और अपना खर्च होता था। अभी हम मुद्दे की बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि हमने भेजा। सबसे पहले मजदूर की डेफिनेशन क्या है? मजदूर वही है जो बेचारा लेबर होता है और जिसकी तनख्वाह जो सरकारी वो है 37,000 से कम हो। पहले बैच में वजीर आला साहब ने सबसे पहले जो नवाजा, इन्होंने सारे PPL वालों को नवाजा जिनकी तनख्वाहें 4 क्लास वाला भी जो है उसकी लाखों में है। फिर रही सही कसर बाद में जो मुशीर हैं लेबर के, बैरिस्टर गुलाम रसूल उमरानी साहब, उन्होंने हाथ साफ किया, उन्होंने अपने सारे चहीतों के बच्चे भेज दिए। मजदूर आपको 10% नहीं मिलता जो हकीकी मजदूर, और 90% ये लोग लेके गए। जोरावरों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे इसमें गए, सियासतदानों के बच्चे इसमें गए, ब्यूरोक्रेटों के बच्चे इसमें गए। और ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं सबूतों की रोशनी में कह रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, होता किया है, जब आप अरबों का प्रोजेक्ट वो कर रहे हो तो आप इश्तिहार देते, उसमें ये कहते कि लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें, जो अच्छा रेट देगा, जिस इदारे की अच्छी मायारी एजुकेशन होगी हम उसको ठेका देंगे। लेकिन इन्होंने नहीं। एक बंदा है डॉक्टर नदीम कियानी, वो पता नहीं किसका चहीता है, उस पर हुकूमत क्यों मेहरबान है, उस पर यहाँ भी मेहरबानियाँ हुई, बगैर टेंडर के तमाम बच्चे उसको भेज दिए गए। उसने क्या किया, आधे बच्चे उसने शेखोपुरा की हदूद कोट अब्दुल मालिक में एक प्लाजा लिए हुए, बंद प्लाजा, उसमें रखे, और आधे इस्लामाबाद के दूर दराज एरियाज में रखे। अब एक बिल्डिंग है, उसी में बच्चे पढ़ते भी हैं, उसी में जो है ना वो सोते भी हैं। क्या ग्रूमिंग है उनकी। अच्छा, उनके और भी मतलब ये इदारे हैं जहाँ मुख्तलिफ वहाँ के लोग पढ़ते हैं। इसने क्या किया, बलूचिस्तान की ज़ाहिरी बात है जो जैसे भी डील की, इसने बलूचिस्तान के बच्चों को एक ही जगह रखा। अब हम भी बाहर पढ़े, इंसान का एक्सपोजर उस वक्त बढ़ता है जब आप मुख्तलिफ कौमियतों से, मुख्तलिफ इलाके के लोगों से वो करते हो। अगर ये हिसाब था तो वो लोग तो यहाँ रहते। अब लाहौर भिजवाना या इस्लामाबाद भिजवाना ये था कि उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन नहीं, 2 प्लाजे लिए हुए हैं और उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है वो आपने देखा, वीडियोस वायरल हो रही थी। इसके बाद मैं देखता हूँ BTEFTA में नाकाम हुआ, वजीर आला ने सारी जिम्मेदारी डाल दी MD तारिक जावेद पे, जिसका कोई फोकस नहीं था, बस आए यहाँ पे हाथ साफ करने पर ही लगे हुए होते हैं। कुछ कंपनियां थी वो सारी अपने अपने मफादों में लगी हुई हैं। तो वो क्या हुआ, वो नाकाम हो गया प्रोजेक्ट, तारिक जावेद को हटा दिया गया, बस चल रही है इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे है अब्दुल सत्तार बुगटी, अब इसका जुर्म भी अरबों में है लेकिन इसको नहीं हटा रहे। क्यों? क्योंकि ये उनका अपना है, शायद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, या फिर नदीम कियानी से कोई डायरेक्ट इनकी डील है। मुझे नहीं समझ आती वजीर आला की नवाजिशात क्यों है उन पर, या वजीर आला का कोई अपना चाहिए है, उसकी मेहरबानियाँ है कि एक बंदे का बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पर बच्चा जो फीस ली जा रही है 72,000 यानी 72,000 रुपये ली जा रही है, और उसका स्टैंडर्ड 22,000 का भी नहीं है। अब अगर मैं बताऊं जो उनको जा रहा है पर मंथ पैसा उनको जा रहा है 8,51,76,000 रुपये पर मंथ जा रहा है। 8,51,76,000 रुपये, ये आप देख रहे होंगे, ये जो गए हुए हैं चेकों की तस्वीर है उस पर। सालाना अगर हम इसकी बात करें तो सालाना इनको जा रहा है 1,02,21,12,000 रुपये। मतलब हर साल उनको कम से कम जो जाएगा 1,02,21,12,000 रुपये। अब इसमें कितने तालीमी इदारे बलूचिस्तान में बन सकते थे? आपने लेबर का वो करना था, लेबर के बच्चे यहाँ बनाते बलूचिस्तान की। अब हर वक्त ही ये बेचारे बाहर ही जाएंगे। अब उनके वालिदैन ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हमारे पास तो इतनी इस्तिताअत नहीं है हम भेज सकें, और कहा कि वो तालीमी इदारा तो नहीं है, वो तो जेल वाला माहौल है, उसी में वो पढ़ते हैं। प्लाजा है, जिस तरह रीगल प्लाजा है या कोई भी प्लाजा होता है, बंद है, न खेल के मैदान है, न तालीम का मायार है, न कोई और सहूलत है, मार कुटाई ज़्यादा है। तो ये तालीमी इदारा है, ये है मजदूर के बच्चे का मुस्तकबिल। मजदूर बेचारे का कोई नहीं है। ये इदारा जो यहाँ पे वर्कर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, करप्शन का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे नॉन लोकल लोग आके फिर उन्होंने कारोबार बनाए हुआ है, नौकरियाँ यहाँ बेची जाती हैं, स्कॉलरशिप में यहाँ घपला होता है।
तो मतलब इस्तेसाल, और वो भी वो कहते हैं ना कि जुर्म है, लेकिन मतलब आप किसी करोड़पति का पैसा खाओ तो एक वो होता है, वो भी कि किसी का नाजायज़ खाओ गुनाह है, जुर्म है, लेकिन अगर आप मजदूर का पैसा खाओ तो कितनी तकलीफ होती है, जो पहले ही पिसा हुआ तबका है। अब वो मजदूर कह रहे हैं कि यार हम जाते हैं नीचे माइंस के मजदूर 3,000 फुट पे आए रोज, आप देखते होंगे माइंस डिपार्टमेंट में कितने माइंस वर्कर बेचारे जो है ना जान की बाजी हारते हैं, हर दिन हर हफ्ते ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई सहूलत भी आती है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उसमें भी हमारे जोरावर लोग, हमारे हुक्मरान लोग उसमें भी कमाई का सोचते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको ये बताई है। अब इनके लिए हुकूमत वफाकी सतह पे 65 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया पूरे पाकिस्तान के लिए। अब उसमें अगर बलूचिस्तान की परसेंटेज पॉपुलेशन वाइज देखें या NFC की मद में देखें 6 से 10% तक आता है। ये इतने अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे एक अपना चहीता बिठाया जाता है, नीचे सारे करप्ट बैठे हुए हैं मोस्टली, जो अगर ईमानदार कोई वर्कर वेलफेयर बोर्ड में बैठे हुए वो फुड्डे लाए हैं। लोग जो जाली लोकलें बनवा के आए हुए हैं, जाली डोमिसाइल बनवा के आए हैं, उन्होंने फिर पैसे लेके मजीद अपने ख़ानदान वाले भर्ती किए हुए हैं, उनकी हेजमनी है, जाली डिग्रियों पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई चेकिंग है ना कोई वो है। अब कोई समझ नहीं आती है, एंटी करप्शन की मुझे समझ नहीं आती। उधर बहुत एक्टिव है, AG ऑफिस तक गए, हाथ वो कर लिया, यहाँ पे समझ नहीं आती वजीर आला का कोई प्रेशर है या यहाँ भी उनके कोई मफाद जुड़े हुए हैं कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड वालों पर उनका कोई वो नहीं आता, जहाँ पे लाखों करोड़ों के नहीं अरबों का घपला हो रहा है, वो भी मजदूरों के बच्चों के नाम पे, मजदूरों के नाम पर। इससे ज़्यादा ख़यानत क्या होगी, इससे ज़्यादा करप्शन क्या होगी? लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी, वैसे तो आए बयानात आ रहे हैं, ना नैब यहाँ एक्टिव है, ना एंटी करप्शन यहाँ एक्टिव है, ना FIA यहाँ पे एक्टिव है। तो ये चीज़ें, इसके बाद मतलब सबसे पहली 2 नंबरी तो यही है कि डायरेक्टली आपका क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि अमेरिकन लाइस्टफ DNK वालों को आपने नवाजा, फिर आपका क्या इंटरेस्ट था कि ये ट्रेनिंगों के नाम पे आपने DNK को नवाजा, हेल्थ में भी सुना उसको नवाजने की वो हो रही है। तो जो तहकीकाती इदारे हैं वो ज़रा तहकीकात करें कि ये DNK और हुकूमत का क्या लेन देन है, क्या पार्टनरशिप है कि ये हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने के नाम पे उनको कैद खानों में तब्दील किया हुआ है, और वो नहीं कर। और वज़ीर आला साहब को इतनी दफ़ा गोश गुजार करके भी ऐसे बयानात देते हैं, चलो जो हो गया सो हो गया, अब तो इनको किसी मायारी इदारे में वो करें, अब तो टेंडर दें, जो कमाइयाँ करवानी थी वो तो आप लोगों ने करवा दी, लेकिन अगर आप लोगों ने यही कमाइयाँ जारी रखनी है तो किसी और तरीके से करो, मजदूर के बच्चे के नाम पे तो ना करो। कह रहे हैं कि उसका बच्चा अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और ब्यूरोक्रेट बनेगा। आज तो उनका सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी जो माशाल्लाह खुद 17 ग्रेड का जूनियर आदमी है, 18 ग्रेड की भर्तियां कर रहा है, और सुना है करोड़ों की डीलें। पिछली दफ़ा भी जब 18 ग्रेड की पोस्ट करोड़ 1.5 करोड़ की बिकी थी, 30 लाख 60 लाख SSTs की। पटवारी का आज बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टेस्ट हो रहा था, लेकिन 18वें ग्रेड का वर्कर वेलफेयर बोर्ड का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ चैन मिली हुई है, उन्होंने बेचनी है। और आप देखो जो पिछले लोग लगे हैं, उनसे आप 5वीं क्लास का टेस्ट लो, अगर वो पास कर सके तो जो सज़ा आप लोग तजवीज़ करोगे हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर नहीं है तो पहले ही ये हालत थी। अब जब स्कॉलरशिप के नाम पे दिया गया, पहले आपने उनको ऐसे 5वीं क्लास जिनकी काबिलियत नहीं थी उनको प्रिंसिपल SST बनाया हुआ है, जाली डिग्रियों के नाम पे, जाली भर्तियों के नाम पे। अब जब स्कॉलरशिप आया उसमें भी आप लोग इतना जुल्म कर रहे हो, कोई एहसास नहीं है। इनमें अगर आपके बच्चे होते, क्या आप वज़ीर आला साहब, उसकी कैबिनेट साहब, क्या वो चाहेंगे कि उनका जो बच्चे हैं वो इन इदारों में पढ़ें, इस DNK वाले इस माहौल में पढ़ें? अगर आप कहते हो ना तो आप मायारी इदारों में पढ़ाए अपने बच्चे भेजो, फिर हम गिला भी नहीं करेंगे। लेकिन अपनों के लिए आप दूसरे इदारे तजवीज़ करो, और गरीबों के बच्चे एक प्लाजे में जेल वाला माहौल दो, तो ये नाकाबिल कबूल है। हम तमाम इदारों से गुजारिश करते हैं कि इनकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि ये क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये DNK और हुकूमत का क्या लेन देन है, इस पर इतनी नवाजिशात क्यों है, और जो इनकी गलतियां हैं रिकवरी भी हो जाए, और साथ साथ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।